রাত্রিবেলা তো চিল্ড ঠান্ডা, সকালবেলা ঠান্ডাটা আছে, মানে তাও অনেক কম, মানে सब खत्म हो जाएगा, चटकपुर भी लास्ट में खत्म हो जाएगा, लेकिन এটাকেই বলে পড়াশোনা করছি। তার মানে এই ছেলেদের যে গ্রুপটা গেল, হ্যাঁ ওরাই করে। উত্তরবঙ্গের ছোট্ট একটি পাহাড়ি গ্রাম চটকপুর। আগের পর্বে বলেছি কিভাবে চটকপুর এলাম এবং কিভাবে ঘোরাঘুরি করলাম। ডেসক্রিপশনে আছে প্রথম পর্বের লিংক। এই পর্বে বলবো চটকপুরে কোথায় পাখি দেখা যায় এবং আমরা কি কি পাখি দেখতে পেলাম। চটকপুরের একেবারে নিজস্ব গল্প শুনব হোমস্টের মালিক বর্ষা রায়ের কাছে। পাহাড়ের মাথায় ধাপে ধাপে মাত্র 19টি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট্ট নিরিবিলি এই গ্রাম। ধাপের একদম শুরুতে আছে ঘন পাইন বন। পাখি দেখার জন্য ঠিক কোথায় কোথায় চুপ করে অপেক্ষা করলে পাখি পাবার সম্ভাবনা বাড়বে তা আমি এই ভিডিওতে বলার চেষ্টা করেছি। যদিও হোমস্টের আশেপাশে এবং সানরাইজ পয়েন্টের কাছেও ওরিয়েন্টাল টার্টল ডাভ, লিটল বান্টিং এবং রেড স্টার্টের দেখা পেয়েছিলাম। ওই একটা পাখি আছে নিচে, ওই যে নিচে ওই যে জঙ্গল, ওই ঘাসটা ওর তার তলায় কিছু একটা ফরেজিং করছে। বিভিন্ন পাখি না আসছে জানো তো, ওই যে ওখানেও একটা কি এলো, ইটস নট হাউস স্প্যারো। আমাদের হোমস্টে একটু ওপরে ছিল, সেখান থেকে নিচে নেমে রয়েছে কিছু গাছ। গাছের অবস্থান এবং পাহাড়ের ঢাল এমনভাবে যে আই লেভেলে খুব ভালো পাখির শট পাওয়া যায় এবং পেছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা থাকার দরুন ওয়াইডেও ভালো ছবি পাওয়া যেতে পারে। সরকারি আবাসের পেছনের পথে পাহাড়ি ঢালে রুফাস সিবিয়া এবং আবাসনের ঠিক পেছনের নিচু গাছে অন্ধকারে পেলাম রুফাস গর্জেটেড ফ্লাইক্যাচার এবং গ্রে হুডেড ওয়াবলার। পাতার ফাঁকে অন্ধকারে ছবি পেলাম এদের। এরপর পাইন বনের ভেতরে ঢুকে চলা শুরু করলাম। এখানে খুবই অন্ধকার এবং দেখে মনে হয় ট্রি ক্রিপারের হ্যাবিটেট। যদিও এখানে অপেক্ষা করা হয়নি। আমাদের লক্ষ্য ছিল ফাঁকা নিচু গাছ বা ঘাসের জমি। জঙ্গলের মধ্যে একটু এগোতেই চোখে পড়ল
বড় গাছের মাথায় সকালের সূর্যের আলোয় খেলা করছে ব্ল্যাক বুলবুলের বড় একটি ঝাঁক। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝোপে চোখে পড়ল হুইস্কার ইউহিনা এবং রেড ক্রসবিলের মতন পাখি। খুব সকালে সূর্যোদয়ের পর 6টা নাগাদ পাহাড়ের গায়ে নরম আলো পড়ে এই সময় এখানে দারুণ অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যায়। ধৈর্য ধরে এবং উপযুক্ত পোশাকে নিশ্চুপ হয়ে অপেক্ষা করে আমরা একে একে পেলাম গ্রিন ব্যাকটিট, রুফোসিবিয়া ইত্যাদি পাখি। এই এলাকায় প্রচুর লিটল বান্টিং এবং ব্লু ফ্রন্টেড রেডস্টার্ট পাওয়া যায়। রেডস্টার্টের মেল ও ফিমেলের খুব ভালো কিছু ছবি পাওয়া গেল। এছাড়াও সহবার্ডার সুপ্রতীপ চাষু পাহাড়ের গায়ে পেলেন ইয়েলো থ্রোটেড মার্টেন। পুকুরের রাস্তাটা খুব ঠাসবুনোর জঙ্গল, বেশ গা ছমছমে পরিবেশ। স্থানীয়দের কাছে শুনলাম এই জলাশয়ে ভালুক, হরিণ এবং লেপার্ডরাও জল খেতে আসে। ঘন বন থেকে স্পট ব্রেস্টেড স্কিমিটার ব্যাবলারের মন ভরানো সুর শুনতে পেলাম। এরপর আচমকা মুখের সামনে দিয়ে উড়ে গেল কম করে 50টি হোয়াইট থ্রোটেড লাফিং থ্রাশের দল। এত আকস্মিক সে ঘটনা যে খুব ঝাপসা একটি ছবি মাত্র পেয়েছি। এছাড়াও মাঝে মাঝেই চটকপুরের আকাশ রঙিন করে উড়ে যাচ্ছিল লাল হলুদ স্কারলেট মিনিভেটের দল। অনেক ওপরে গ্রিফন ভালচার তার বিশাল ডানা মেলে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করছিল কোথাও তার খাদ্য আছে কিনা। ব্লু হুইসলিং থ্রাশের মিষ্টি ডাক মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল এখানে। পুকুরের রাস্তাটা ভারী সুন্দর, কিন্তু তবু বেখেয়ালি পর্যটক কোথাও কোথাও ফেলে গেছেন প্লাস্টিকের প্যাকেট। আমাদের সহযাত্রী বন্ধু নিজের উদ্যোগে সেই প্লাস্টিক পরিষ্কার করলেন। আমরা এখন এই প্লাস্টিক ক্লিন করতে করতে যাচ্ছি, মানে যতটা পারা যায়। আর এই রাস্তার মধ্যে আমার এইগুলো ভীষণ রাগ হয়। আর সব থেকে বড় বিষয় তুই ভাব, এই হ্যাঁ এই রাস্তার মধ্যে কারোর দেখে মানসিকতা আসছে যে এখানে আমরা একটা ফেলবো না। লোকে কি হয় ইউজুয়ালি একটা ডাস্টবিন দেখলে লোকে সেখানে ফেলে, ওটা একটা মেন্টালিটি তৈরি যে হ্যাঁ এখানে সবাই নোংরা করছে আমিও ফেলবো। ব্যাগে রেখে ব্যাগে নিয়ে আসলে এই জায়গাটা এতটাই ক্লিন আর এতটাই আর কি এত সুন্দর, এত পলিউশন ফ্রি। হ্যাঁ 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 হাতে আর কুলো প্লাস্টিক আমাদের সাথে থাকলে নেওয়া ও ঠিক, আর তো নেইও, আর এই জায়গাটায় আর অত নেই। প্রকৃতি আমাদের যা দিয়েছেন তার কানাকড়িও আমরা শোধ করতে পারবো না, কিন্তু এই ছোটোখাটো প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি প্রকৃতিকে নিজেদের স্বার্থেই একটু ভালোভাবে রাখতে। প্রকৃতি যাদের জীবনকে নিজের হাতে ঢেলে সাজিয়েছেন সেই চটকপুর গ্রামের হোমস্টের মালিক বর্ষা রাই। তার ছোট্ট মেয়ে আকৃতির নামে তার হোমস্টে। তিনি আমাদের বললেন তার গ্রামের নিজস্ব কিছু কথা, ট্যুরিজমের হাত ধরে তাদের গ্রামের উন্নয়নের কথা। अच्छा रोडोडेंड्रन का पेड़ है वो। नहीं, ये चापा है, सब वाइट चापा, अच्छा अच्छा अच्छा।
और ये जो खेती आप लोग यहाँ पहले से मतलब खेती करते थे, तो आजकल आप खेती करते हो या हम लोग खेती करते हैं लेकिन 50-50 होता है, जैसे कि हम लोग का जून 15 टू सितंबर 15 टोटली क्लोज रहता है और हम लोग का रेनी सीजन भी है और हम लोग का समर सीजन भी। तो उस टाइम पे हम लोग ज़्यादातर खेती करते हैं, जैसे हम लोग का एनुअल खेती कैबेज है, हम लोग सबसे ज़्यादा कैबेज लगाते हैं, दिख रहा है लेकिन अभी खेती उठ चुका है क्योंकि अब ठंड होने लगा है, तो हम लोग का थोड़ा ड्राई सीजन स्टार्ट हो गया है। नहीं तो हम लोग का जनवरी फरवरी भी थोड़ा ऑफ सीजन है, उस टाइम पे भी हम लोग का उतना गेस्ट नहीं आता है, तो हम लोग ज़्यादातर फोकस एग्रीकल्चर में ही करते हैं। लेकिन उस टाइम पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग का थोड़ा जैसे कॉलीफ्लावर होता है वो सब हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। रेडिश होता है यहाँ पर, धनिया होता है। और और ये आप जो होम स्टे में मतलब आप खाना बनाती है इतना टेस्टी बनता है, ये क्या मतलब कल जो आप बता रही थी कि ये आपका जो हिल का जो जो फूड होता है इसीलिए इतना अच्छा बनता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना टेस्टी होता है, यहाँ का पानी बहुत ही टेस्टी होता है, अच्छा होता है, रिफाइन होता है। और दूसरा है कि हम लोग जो भी पकाते हैं मन से पकाते हैं, हम लोग कोई भी हमने मैनेजमेंट नहीं किया है, लेकिन हम जो भी पकाते हैं मन से पकाते हैं कि गेस्ट को टेस्टी और हेल्दी खिलाने की कोशिश करते, कोई डेकोरेट नहीं करते, क्योंकि डेकोरेट तो आप लोग खाते हैं होटल में जहाँ पर भी, लेकिन होम स्टे पे आए हैं आप लोग घर का खाना खाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग घर में खाते हैं वही खाने की खिलाने की आपको कोशिश करते हैं। अब यही खाते हैं हम लोग, दोपहर में यही खाते हैं हम लोग, चावल दाल। हम लोग भी दोपहर में हेवी खाना खाते हैं, मतलब अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन जैसे रात को हम लोग लाइट खा लेते हैं। जैसे कि अगर चिकन बनता है तो सिर्फ चिकन और रोटी बनेगा, या तो आलू भाजा बना रहे तो सिर्फ आलू भाजा और रोटी बनेंगे। हम लोग रात को और सुबह थोड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन लंच हम लोग भी थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं। डेवलप हो गए, डेवलप हुए, जैसे कि किसी का भी फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग होता है तो वो बन जाता है, डेवलप हो जाता है। उसी कारण से हम लोग बच्चों को भी तो अभी कैथलिक स्कूल पढ़ा पा रहे हैं सिस्टर के, नहीं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर करो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे टूरिज्म आया हम लोग का इनकम बढ़ने लगा, हम लोग बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए। ये सब के बारे में आपको हम जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि चटकपुर में अभी खेती नहीं हो रहा है, अभी क्या करेंगे, हम लोग का टाइम भी तो नहीं मिलता ना। ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, तो क्योंकि हम लोगों को ये जनवरी फरवरी में कवर करना है, क्योंकि हम लोग का फरवरी में स्कूल का एडमिशन ओपन होता है। और दूसरी बात है हम लोग का मार्च अप्रैल मई में पूरा सीजन चलता है, वो सब हम लोग को सेविंग करके फिर जून 15 टू सितंबर 15 3 महीने मेंटेन करना है। अच्छा, बच्चों को मेंटेन करना है, होम स्टे मेंटेन करना है, सब कुछ हम लोग का जो भी सोसाइटी में मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग का अक्टूबर से तो ओपन होगा, तो हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसे ही चलता है। अभी चल रहा है, थोड़ा डेवलप हो रहा है, बस यहाँ का रास्ता वगैरह खराब है, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाने नहीं देते, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने गाँव को मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी हम लोग तो पूरा मेंटेन करते हैं, ये रास्ता क्लीन करना, वॉच टावर क्लीन करना, नीचे जो फॉरेस्ट बंगलो पाइन फॉरेस्ट सब क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी जो घूमने आते हैं वो लोग फेंक के कर देते। लेकिन फिर भी हम मेंटेन कर रहे हैं, अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गांव भी ऐसे सुंदर रहे, ब्यूटीफुल रहे, और हम लोगों का टूरिज्म भी चलता रहे, गेस्ट भी आता रहे। हाँ, ब्यूटीफुल और पॉल्यूटेड ना होने से ही तो लोग आएंगे। हाँ, वही तो मेंटेन कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी चटकपुर ऐसे ही मतलब मेंटेन और ब्यूटीफुल रहेगा। हाँ, कि आप बिल्डिंग मत बनाओ, थोड़ा कॉटेज टाइप का बनाओ, मतलब काट वगैरह। हम कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप लोग थोड़ा मेंटेन कीजिए, अगर हम सब चीज में टाइल्स लगाए ना तो गेस्ट रह नहीं पाएगा। वही तो हम लोग को चादर और प्लाई लगाना ही पड़ेगा, और हम लोग क्या सोचते थे, बिल्डिंग तो आप लोगों के पास है, तो आप बिल्डिंग ही दिखाएंगे तो कैसे अट्रैक्ट होंगे। वही तो हमें हिमाचल प्रदेश लेके जाइए, हम खुश नहीं होंगे, बिकॉज हम पहाड़ से आए, बट हमें बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल दिखाइए, हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज अपने पास नहीं हो दूसरा दिखाने से तो अट्रैक्ट होंगे। वही तो लेकिन अभी देखते हैं कि इससे डेवलप होगा, लेकिन हम तो हमेशा अपने गांव को बचाना ही चाहते हैं, ब्यूटीफुल रहे। लेकिन इसमें एक चटकपुर में एक बात अच्छा क्या है कि हम लोग किसी को जमीन बेच नहीं सकते। अच्छा, कोई खरीद नहीं सकता। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। ये करने से कोई भी खरीद नहीं सकता, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कल जाके हमारा अगर जमीन बेचने को मिल जाए तो क्या करेगा कि लोग हजारों रुपए लाख करोड़ फेंक के यहाँ पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देगा। तो वही तो सब खत्म हो जाएगा, चटकपुर भी लास्ट में खत्म हो जाएगा, लेकिन
जो हम लोग बेच नहीं सकते, इसमें हम लोग को अच्छी बात ये है कि हम लोग किसी को बेच नहीं, जो भी करना है हमको खुद करना खुद है। करना है। अगर दूसरा रूम बना रही हूँ तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। हाँ 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 तो मैं ही खुद प्रोग्रेस कर रही हूँ ना। हाँ, वही तो, ये बहुत अच्छी बात है। टूरिज्म होने से हम लोग डेवलप बहुत हुए, क्योंकि हम लोग खुद भी एडुकेटेड हुए और बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हैं। वही तो। हाँ लेकिन बस अब थोड़ा ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से थोड़ा यही पॉल्यूटेड हो रहा है, मतलब इधर उधर फेंक रहे हैं। अगर ये भी हम लोग मेंटेन कर पाए हाँ हाँ तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। आने अच्छा वाले रहेगा। 10-20 साल तक भी चटकपुर ऐसे ब्यूटीफुल और क्लीन रहेगा। हाँ। आपका कितना दिन का होम स्टे है? हमारा तो 2011 का है। 2011 का। आपका कितना रूम कितना है? हमारा 4 रूम्स है। 4 रूम्स है। और आप भी इधर ही रहते हैं? हम इधर रहते हैं। अच्छा। কেমন লাগলো এই পর্ব আমাকে জানান কমেন্ট করে। ভালো লাগলে লাইক করুন। ইনস্টাগ্রাম এবং এফপিতেও ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া ট্রাভেলসকে ফলো করুন।